So we have to check the continuity of f now, okay, at 0. So f is additive that we have shown in its first variable, and in a similar way you can prove that it is additive in each variable, okay. तो फर्स्ट वेरिएबल में भी हमने स्पेशल केस लिया था, तो वहाँ पर आप सारे केसेस देख सकते हो जो मैंने बताया था आपको। उसको एक और केस ही अगर आप चेक करते डिफरेंट केस तो वो अच्छा रह जाता है। तो हमने केस किया था चेक, अगर ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो और उनका सम अगर पॉजिटिव हो देन एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, वो हमने चेक किया था। सो नाउ लेट्स चेक द कंटिन्यूटी इन इट्स फर्स्ट वेरिएबल, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी इन ईच वेरिएबल एट जीरो। सो वी चेक द कंटिन्यूटी इन फर्स्ट वेरिएबल एट 0. So next we show that f is continuous. F is continuous in each variable separately, okay, in each variable separately at 0. So first we check in its continuous at in first variable, okay. We check its continuity from the left. Similarly we can check its continuity from the right at 0 in the first variable. So for this first variable के लिए आपको जो है ना आगे वाले जो n-1 वेरिएबल्स है उनको फिक्स करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट वेरिएबल चेंज करना है, ओके। तो अगर मैं बताऊंगा आपको, ये मुझे चेक करना है ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, इट्स अ फंक्शन n वेरिएबल्स, ओके। आपको चेक करें इट्स कंटिन्यूस इन अ फर्स्ट वेरिएबल एट 0, दैट मीन्स यू हैव टू शो दैट दिस लिमिट x1 अप्रोच टू 0 f of this, okay, should be equal to f of 0, rest variables will remain the same. तो सिर्फ हमें फोकस करना है किस वेरिएबल पर, फर्स्ट वेरिएबल पर, फर्स्ट वेरिएबल only. So for this we choose we check the left continuity first, then we check the right continuity at 0. So let or you can say assume let's suppose this is the first variable, assume that this ak it approaches to 0, and let's fix the other variables. Let's take I equal to the product of the interval is I runs from 2 to n ixi. Then you can see this, the product of now n copies of the interval ak approaches to 0 from the left, it means that ak is negative, okay, ak is negative. Its cross product with I is the product of n minus 1 copies. This is the first copy, ak is 0, so it is the product of n copies now. ak is 0 cross I, it's the product of n copies, and you will see that as soon as this ak it increases to 0, so that means this interval ak0, ये जो interval होगा ना ak0, this will decrease to the empty set, है ना। अगर ak हो रहा है 0 की तरफ जा रहा है, ak increase to 0, ak यहाँ कोई नेगेटिव नंबर है, this is 0, this is your ak, okay, this decreases to 0, increases to 0, sorry, it's the values are increasing, but at the same time the set this, अगर ये increase हो रहा है 0 की तरफ, ये set decrease हो रही है, जो इंटरवल है ये decrease हो रहा है, ये कम हो रहा है। अगर ak 0 की तरफ जा रहा है तो ये जो इंटरवल है ना it decreases, so that means this will decrease to
the empty set O, because the first one is the empty set. Empty set cross, the cross product of the empty set with any set is always the empty set. ये clear है? Yes. So this will decrease to the empty set. Now we can apply the theorem that actually we have shown that if we have a measurable set En and it will decrease to the set E, then its measure mu of En, this will decrease to mu of E. ये हमने चेक किया, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है मेजरेबल सेट्स के लिए, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसमें. So and we also mentioned the theorem number here. So by theorem 15.4, okay, मैं अब यहाँ पर मेंशन ही कर दूंगा. by theorem 15.4, you can see that the measure of this set, this mu is a measure on Rn actually, so it's Rn actually, it is a subset of Rn, this thing, it's AK 0 cross I, this will decrease to mu of the empty set. So which but this one, you can see this one, what's this? This is actually ये जो है ना आपके भैया एक्चुअली फंक्शन है f of a k, ना आपकी जो फंक्शन है f of a k, then x2 x3 so on xn, जो फंक्शन की डेफिनेशन, उसके साथ भी s भी है आपका s. So now this decreases to 0, this one, and the what is the product, we don't know the product is negate, that s जो है ना, s the product of these what's s is actually the sign, है ना, sign है s, it's a sign of it's a sign of those अगर आपके पास गिवन टॉपल है n टॉपल x1 x2 so on up to xn, ये टॉपल आपके पास. अब यहाँ पर तो फर्स्ट वेरिएबल आपके पास a k है, a k x2. अब इन जो कंपोनेंट्स इसके है, जो कोऑर्डिनेट्स इसकी है, अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तब हमने s को डिफाइन किया था, दिस इज +1, ओके. इफ इट्स नेगेटिव तो देन इट्स -1. और फिर हमने f फंक्शन डिफाइन की थी, f ऑफ x1 x2 so on up to xk, it's equal to s times the measure of this ix1 cross ix2 cross so on xk. तो ऐसी हमने फंक्शन डिफाइन की थी, s टाइम्स दिस, अगर आपको याद होगा. तो वही हम यहाँ पर देखेंगे. तो s तो -1 भी हो सकता है, s +1 भी हो सकता है. सो ये जो लिमिट है ना, जब मैं इसको s के साथ प्रोडक्ट करूँ, अब ये डिपेंड करेगा s की साइन पर, वो +1 है या -1 है. अगर वो +1 है तो देन इट विल स्टिल डिक्रीज टू 0. दिस mu ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, दिस विल डिक्रीज टू 0. बट इफ s इज -1, अगर f -1 हो तो उस केस में ये जो लिमिट है इट विल इंक्रीज. बट we can at least write this limit k, not I will not apply the limit here. First I will multiply it with s, and s first I will multiply it with s. It's s of ak इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट, इसी तरह से आई के जो इंटरवल है ix1 ix2 ix3, so it's x1 x2 so on, sorry it starts from x2 x3 so on xn, then mu of ak0 cross I. This will the limit of this thing, okay, you can say limit of this thing, limit k approach to infinity, limit of this thing is equal to 0. अब यहाँ पर मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिमिट नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट द साइन ऑफ s, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव. इफ इट इज प्लस तो ये वही रहेगा, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही हो जाएगा.
but if it's negative then it will increase. So at least I can say the limit में at least लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो s का वैल्यू है it's either +1 or -1. This implies limit k approaches to infinity. This thing is actually f of ak x to xn is equal to 0, but this 0 is same as f of 0 x to so on xn. लिमिट तो ए के तो अप्रोच कर रहा है ना जीरो की तरफ, सो दैट मीन्स जब हम फर्स्ट वेरिएबल का लिमिट लेंगे जीरो पर, सो इट्स इक्वल टू द एफ ऑफ जीरो, तो लिमिट ऑफ द जीरो आ रहा है लिमिट जब हम इस पर अप्लाई करेंगे. सो दैट मीन्स इट इज इट्स लेफ्ट कंटिन्यूअस एट जीरो, इट्स लेफ्ट कंटिन्यूअस एट जीरो फॉर द फर्स्ट वेरिएबल. So therefore f is left continuous, therefore f is left continuous at 0 for first variable, for first. Now since we have this f of minus b x to so on up to xn is equal to minus times f of b x to, अब माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं. सो therefore f is also right continuous, that you can easily check, that's not too difficult. Therefore f is also right continuous, f is also right continuous. This you should can do at least, okay. So therefore f is also right continuous at 0 for first variable, Similarly f is continuous, so right भी हो गया left भी हो गया, तो similarly f is continuous in each variable. Similarly f is continuous in each variable, at 0, at. Now we can apply previous theorem. So by previous theorem, we have this f of x1 x2 so on up to xn is equal to c times x1 x2 xn. तो ये c तो हमें मिल जाएगा, there is the constant c such that this is true. Okay, f is additive function, तो आप ये लिख सकते हो. So that means that is what's f? F is s times s of x1 sine of this into mu of the product I xi, I runs from 1 to n. This is equal to c times x1 x2 xn, c times this. Okay, fine. So now mu is a non-zero, therefore c must be non-zero, c can't be equal to 0. Mu is non-zero, it's a non-zero measure, and this is also non-zero because it's either +1 or -1, so the product is non-zero, that means c is also not equal to 0. But how can I assure that this is positive? This is also positive. Okay, so this c is positive because mu is actually positive. Okay, this mu is positive, this value is positive, this number is positive. अब c के बगैर जो बाकी यहाँ पर पैरामीटर्स बचे हैं, वो एक तो ये प्रोडक्ट बचा है,
सी को छोड़कर, और दूसरा ये एस बचा आपके पास। अगर एस नेगेटिव होगा, अगर एस क्या होगा, नेगेटिव, उस केस में प्रोडक्ट नेगेटिव है सारा, और उस केस में ये साइड भी नेगेटिव होना चाहिए। अब चूंकि एस आपने मान दिया नेगेटिव है, नेगेटिव इसकी दो ही वैल्यूज है +1 और -1, तो आपने मान दिया कि इसका वैल्यू -1 है। तो ये -1 तभी होगा अगर ये प्रोडक्ट है, एक्स आई का जो प्रोडक्ट है, अगर ये नेगेटिव होगा तो उस केस में ये भी नेगेटिव होगा, उस केस में ये भी नेगेटिव होगा। और लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव आ ही गया आपका, क्योंकि म्यू पॉजिटिव है, एस नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है। राइट हैंड साइड में भी आपका जो x1 x2 x ये नेगेटिव है, तो देन दिस सी मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर सी भी नेगेटिव होगा उस केस में प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, विच इज नॉट द केस बिकॉज योर LHS इज नेगेटिव। अब सेकंड केस ये है कि अगर s पॉजिटिव होगा, मतलब इसका वैल्यू +1 होगा, उस केस में जो प्रोडक्ट है ना x1 x2 xn ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि s तो तभी पॉजिटिव होगा जब ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेशन है s की, तो c भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि अगर c नेगेटिव होगा उस केस में RHS आपका नेगेटिव आ जाएगा, बट योर आपका जो LHS है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि आपने मान लिया कि s पॉजिटिव है, म्यू तो है ही पॉजिटिव। सो देयरफॉर दिस implies c must be positive, c must be पॉजिटिव, c का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, c must be positive in any case, in any case c is positive. So now you have this equation, actually this one, so let's take असल में आपको ये प्रूव करना, म्यू ऑफ ए इक्वल टू सी टाइम्स लैम्डा ए, ये आपको प्रूव करना है। तो हम ए आपको इस कोई सेट लेंगे, पहले हम ए का स्पेशल केस लेंगे, इफ इट्स अ मेंबर ऑफ समी, उस केस में हम इसको चेक करेंगे ये क्या आ जाएगा। सो नाउ लेट अस सी, now let A be a set which is the product of n copies of semi-closed intervals. Product I runs from 1 to n, AI BI with minus infinity less than AI less than BI less than infinity. Okay, then this A can be written as, then this A can be written, A को हम ऐसे लिख सकते हैं, first you take this n tuple A1 A2, ये n टपल में बाहर निकालता हूँ, प्लस जो प्रोडक्ट बचा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ इंटरवल्स आई रन्स फ्रॉम 1 to n, उसका जो फर्स्ट वो जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, देन b माइनस ए, ओके bi माइनस ए, bi माइनस ए, ये आप लिख सकते हो, a को इसके बराबर लिख सकते हो आप। तो मैं एक इंटरवल के लिए आपको मैं बता दूंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इट्स वेरी सिंपल। से आपके पास इंटरवल ए बी है, ठीक है, ए बी आपके पास इंटरवल है, ए बी को आप लिख सकते हो ए प्लस इंटरवल 0 b माइनस ए। तो जब भी आप कोई पॉइंट करोगे ना इंटरवल के साथ ऐड, यू हैव टू ऐड दैट नंबर तो बोथ द एंड पॉइंट्स 0 एज वेल एज b माइनस ए। जब आप ये ऐड आप करोगे इसके साथ, इट विल बी a to b। तो इसी तरह से अगर आपके पास दो कॉपीज होगी a1 b1 क्रॉस a2 b2, इसको आप लिख सकते हो ऐसे a1 b1 a1 a2 सॉरी a1 a2 a1 a2 टॉप ऑर्डर पेयर a1 a2, ओके इट्स ऑर्डर पेयर a1 a2 प्लस 0 to b1 माइनस a1 क्रॉस 0 b1 माइनस a2, ये आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों। आप ऐड कीजिए ना इसको वापस, ये आ जाएगा, मतलब a1 तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा a1, तो ये आ जाएगा a1 b1 माइनस a1 इट्स b2 के, नहीं a1 और a2 दोनों फर्स्ट कंपोनेंट्स के साथ ऐड हो जाएंगे। इट विल बी हियर, जब a1 ऐड करेंगे आप इस फर्स्ट वाले के साथ, जो ऑर्डर पेयर्स है उसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो इसमें है 0 to b1 माइनस ए, तो a1 इसके साथ ऐड हो जाएगी, इट विल बी a1
then b1, a1 to b1, okay, 0 plus a1, b1 minus a1 plus a1 क्रॉस a2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, इट विल बी हियर a2 then b2 minus a2 plus e2, तो ये आ जाएगा ये इंटरवल जो आपके पास था। या अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे आ रहा है, ये यू कैन विजुअलाइज इट बट यू कैन आल्सो प्रूव इट। आप इसमें से कोई पॉइंट लीजिए, आप इजीली बता सकते हो वो इसमें आ जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। आप ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको पूरा जो मैथमेटिकल आर्गुमेंट देना होगा तो यू कैन डू इट लाइक दिस। एक्स आप इसमें से लीजिए, वो आप एक्स प्रूव कीजिए, वो इस सेट में है। सो आपने ये देखा कि a है उसके बराबर a1 a2 द n tuple प्लस एक्चुअली a इज नॉट, इट्स अ ट्रांसलेशन है, इट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ दैट semi closed interval by the vector a1 a2 an. So we can write this as we can have this mu of a किसके बराबर आ जाएगा, mu of a आ जाएगा mu of the n tuple plus the product I runs from 1 to n 0 to bi minus ai, ये है आपका म्यू। बट म्यू इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट, तो इस फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा म्यू पर। इट्स म्यू ऑफ द प्रोडक्ट आई रन्स फ्रॉम 1 to n 0 to bi minus ai। तो यहाँ पर ये जो आपका n टपल है ना, जिसका आपको प्रोडक्ट चेक करना है, वो है ये b1 minus a1 फर्स्ट एंट्री, b2 minus a2 सेकंड, ये सारी पॉजिटिव नंबर्स है। सो इट इज सेम एज s ऑफ b1 minus a1, b2 minus a2, bn minus an, बिकॉज इसका वैल्यू 1 के बराबर, बिकॉज द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, each component is positive, each coordinate is positive actually, and then mu of this, mu of the product I runs from 1 to n, this you can write this as I bi minus ai, and this by definition this is equal to, what's its definition, it's equal to f of b1 minus a1 b2 minus a2 है ना, ये इसी के बराबर है by the definition of math। it's b1 f of b1 minus a1 b2 minus a2, okay, so then bn minus an, bn minus an, and this you have shown that f of x1 x2 xn is equal to c times x1 x2 so on up to xn, so it's equal to c times b1 minus a1 b2 minus a2 and then bn minus an, so this is equal to c times b1 minus a1 b2 minus a2 bn minus an, but this is the Lebesgue measure of this, the product of intervals. This is c times the Lebesgue measure of this a1 b1 cross a2 b2 cross an bn, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, and that's equal to c times the Lebesgue measure of the product of the intervals ai bi, I runs from 1 to n, and this is equal to c times Lebesgue measure of a। तो आपने प्रूव किया mu of a जो है this is equal to c times Lebesgue measure of a। So in other words you have shown that this lambda is equal to, because c is positive, it is equal to c inverse mu of a। तो ये तो आपने सेमी रिंग के लिए प्रूव किया है ना, a is the product of semi closed intervals for all a equal to this product ai bi, I runs from 1 to n।
मगर आपको एक्चुअली बोरल सेट्स के लिए प्रूव करना है। यहाँ पर आप थ्योरम अप्लाई करोगे, थ्योरम 15.10। तो अगर कोई चीज़ इसके लिए अगर ये इक्वल है, यहाँ पर अगर ये इक्वल है तो ये बोरल सेट्स के लिए इक्वल हो गए। नाउ यू कैन अप्लाई दैट थ्योरम। So you can see that theorem, it's 15.10 on Alprints. So by theorem वो हमने की है, by theorem 15.10 we have this lambda of A is equal to C inverse mu of A for every A belongs to this Borel algebra. So that is mu is equal to C times Lebesgue measure of A on B. ये आपको प्रूव करना था। mu of A equal to, okay? mu of A equal to this. तो ये हो गई, ये थ्योरम कंप्लीट है। जो भी ट्रांसलेशन इनवेरिएंट बोरल मेजर है आर एन पर, वो एक्चुअली लेबेग मेजर ही है, स्केलर मल्टीपल ऑफ लेबेग मेजर। ये आपने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद इसमें बचे हैं दो रिजल्ट्स ना इस सेक्शन में, तो वो हम आज करेंगे। स्टीनर्स थ्योरम इसकी है और उसका लेमा है स्टीनर्स थ्योरम का। तो स्टीनर्स थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीनर्स थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एप्लीकेशन मैं आपको बता दूंगा फिर आगे। देखिए, अगर आपके पास इंटरवल है 0-1, ठीक है, ये इंटरवल आपके पास है 0-1, इसका लेबेग मेजर पॉजिटिव है, इसका लेबेग मेजर 1 के बराबर, उसकी लेंथ के बराबर है। अब अगर मैं इस इंटरवल के सिर्फ इरेशनल पॉइंट्स लूंगा, 0-1 क्यू कॉम्प्लीमेंट, ओके, क्यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0-1 इंटरवल में जो इरेशनल पॉइंट्स, उसका लेबेग मेजर क्या है? इसमें जो रैशनल पॉइंट्स हैं उनका लेबेग मेजर क्या है? रैशनल पॉइंट्स का सेट ऑफ रैशनल इज काउंटेबल, और काउंटेबल सेट का लेबेग मेजर क्या होता है? व्हाट्स द लेबेग मेजर ऑफ काउंटेबल सेट? Yes, it is 0 है, ओके। तो इरेशनल्स का लेबेग मेजर क्या आ जाएगा फिर? इंटरवल 0-1 में रैशनल्स का लेबेग मेजर तो 0 है, इरेशनल्स का क्या आ जाएगा? यस, 1 आ जाएगा, एग्जैक्टली। सो इट्स इक्वल टू 1, so it's equal to 1, which is positive number. So I'm not interested in 1, I am interested in positive number. It's a positive number, that's very important. It's a positive number. ये जो सेट ऑफ रैशनल्स है इंटरवल 0-1 में, इसका लेबेग मेजर पॉजिटिव है, ठीक है, 1 के बराबर है, पॉजिटिव है। अब मुझे बताइए, क्या ये जो सेट है इसको मैं ए से डिनोट करूंगा? इस सेट में कोई इंटरवल है, कोई किसी इंटरवल को ये कंटेन कर रहा है सेट ऑफ इरेशनल्स? डज इट कंटेन एनी इंटरवल? डज इट कंटेन एनी इंटरवल आई? ये जो आपने लिए ना इरेशनल पॉइंट्स 0-1 इंटरवल की, क्या ये किसी इंटरवल को कंटेन कर रहा है? नहीं कर रहा ना, क्योंकि अगर ये किसी इंटरवल को कंटेन करेगा ना, इंटरवल में रैशनल पॉइंट्स भी होते हैं और कोई भी इंटरवल आप लीजिए, आप कितना ही छोटा इंटरवल लो, इट विल ऑलवेज कंटेन irrational, not all, but it contains irrational as well as rational points. क्योंकि जो भी इंटरवल आपके पास होगा इसके ऑब्वियसली एंड पॉइंट्स होगी ना, इसे ए बी, सेमी क्लोज और सेमी ओपन, कुछ भी हो सकता है इंटरवल। लेट्स टेक ओपन। तो ये जो इंटरवल है, सपोज इसने इंटरवल को कंटेन किया है, तो इंटरवल इसका सबसेट है, मगर ये जो सेट है इंटरवल ए टू बी, ए और बी के दरमियान रैशनल पॉइंट्स भी हैं, तो इसका मतलब कि रैशनल पॉइंट्स भी फिर इस इंटरवल में आने चाहिए, फिर इस सेट ऑफ इरेशनल जो है ना इसमें रैशनल पॉइंट्स भी आने चाहिए, विच इज नॉट द केस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली रैशनल पॉइंट्स, it is consisting of only the rational points of the interval 0-1. So that means we have a set of positive measure.
अभी तक आपने ये सोचा होगा कि जो भी इंटरवल है उसका लिबेक मेजर पॉजिटिव है, और आपके जहन में ये भी होता होगा कोई भी सेट जिसका लिबेक मेजर पॉजिटिव होगा दैट शुड मस्ट कंटेन इंटरवल, वो इंटरवल टाइप का ही होना चाहिए, बट इट इज नॉट द केस बिकॉज वी हैव अ सेट having Lebesgue measure positive, but that set does not contain any interval. And now what's actually Stinner's theorem? Stinner's theorem states that अगर कोई भी सेट आप लो जिसका Lebesgue measure पॉजिटिव होगा, ये अगर खुद इंटरवल ना करे कंटेन, अगर इसमें इंटरवल नहीं होगा सबसे, बट द सेट डिफरेंस जो आप लोगे ना, दिस अलजेब्राइक डिफरेंस e minus e, e minus e means the set of these points x minus y, so that x in e, y is in e, दोनों e में है। ये जो सेट होगा, सेट ऑफ डिफरेंसेस, अलजेब्राइक डिफरेंस, एक तो सेट डिफरेंस होती है ना, सेट डिफरेंस, दैट्स